आज इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम का सेकंड क्वेश्चन हम करने लगे, जो कि क्वेश्चन ये है कि रोमन लीगल सिस्टम में क्राइम का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपका एक पार्ट रोमन लॉ में से भी आएगा। वहां पर पनिशमेंट के वाले से ये कॉन्सेप्ट है कि आप अगर रिच क्लास से बिलोंग करते हैं ना, तो आपके साथ जस्टिस किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जैसे कि गरीब तबके से हैं तो फिर आपकी सज़ा उतनी सख्त होगी। तो वहाँ पर सोशल स्टेटस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अब जैसे कि वहाँ पर सज़ाएं इस तरह से दी जाती है कि सर उखाड़ देना, बोरी में बंद करके फेंक देना, ठीक है, क्रूसीफिक्शन कर देना, मतलब कि कील ठोक देना, सही है, और ये है कि डेथ की सज़ा दे देना, सही है। तो हम देखते हैं कि प्रिसाइसली देखते हैं कि रोमन लीगल सिस्टम में क्राइम का क्या कॉन्सेप्ट है। Introduction. Punishment in ancient Rome was decided upon by two factors: the social status of the condemned person and the severity of the offense committed. Some common punishments included beheading, drowning in a sack, exile, मतलब के वतन बदर कर देना, torture, imprisonment, being thrown to gladiators or wild animals as entertainment, crucifixion or even death. The punishment also depended upon of the crime committed was a public or private offense. Usually private offenses were considered to be punishable by torture or death. Private offenses could usually be settled by fee or forfeiting of your land. Social status was major when deciding a suitable punishment for a criminal. If the condemned person was of the upper class, then he would have a fair trial, and most likely not as awful a punishment as a person of lower class. Public punishment was used as a way to educate the citizen. जी, इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ है आपको? हाँ जी, इंट्रोडक्शन समझ आया आपको? Punishment in social classes. Number one, although your punishment for a committed crime depended on the crime itself, it also had highly to do with the social class to which you belong, especially in ancient Rome. For example, if a social elite and a slave were to have both committed murder, the punishment and its intensity would be different. अच्छा, वही बात यहाँ पर दोहराई की गई है कि जब आप कोई क्राइम कमिट करते हैं ना, तो उसमें सोशल क्लास को बहुत रिगार्ड किया जाता है एशियन रोम में। मतलब कि अगर आप अपर क्लास से बिलोंग करते हैं और आप एक तरफ स्लेव है, तो क्राइम दोनों ने कमिट किया है, लेकिन जो पनिशमेंट की इंटेंसिटी और सिविरिटी है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। नंबर टू, एन एलीट में गेट द गवर्नमेंट इन्वॉल्व विद अ ट्रायल and maybe end up forfeiting his land, whereas a slave would most likely end up tortured or dead. In most cases, a slave owner would decide the punishment for them, which meant the punishment know what the crime would be lacking in regulation. अगर अब अपर क्लास का कोई क्राइम कमिट करेगा तो उसमें वो गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करेगा, एंड पे क्या होगा कि उसकी लैंड ही स्नैच की जाएगी। लेकिन अगर स्लेव कमिट करता है क्राइम तो उसे टॉर्चर किया जाएगा या उसकी डेथ कॉज कर दी जाएगी। तो हम इसमें देखते हैं कि रेगुलेशंस लैक कर रही हैं, रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा। नंबर थ्री, a slave required to give evidence in a courtroom was usually tortured beforehand to prevent lying under oath. अब स्लेव को जब बुलाया जाता है उससे पहले इतना टॉर्चर कर दिया जाता है जब उसे एविडेंस लेने के लिए कोर्ट रूम में पेश करना होता है। ब्रोक द लॉ पनिश, मतलब कि उन लोगों से कैसे डील किया जाता है जो कानून की खिलाफवर्जी करते हैं। नंबर वन, द रोमन्स डिजाइन द पनिशमेंट टू डिस्करेज पोटेंशियल क्रिमिनल्स। नंबर टू, how you were punished depended on who you were and your position in Roman society. Number three, whipping and fine were the most common punishment. Number four, wooden shoes were sometimes placed on the feet of prisoners, making escape difficult. Number five, a slave could be forced to carry a piece of wood around their neck that started their crime. Number six, for very serious crime, you could be killed by crucifixion, thrown from a cliff into river, or even buried alive. Crucifixion was saved for serious crimes such as revolt against the empire. Number seven, over time, Roman punishment became more and more violent. अच्छा, अब इसमें ये कहा गया है कि रोमन्स ने अपना जो पनिशमेंट का निज़ाम है वो इसलिए डिज़ाइन किया है ताकि पोटेंशियल क्रिमिनल्स जो कि हार्डेंड होते हैं, ज़्यादा जो क्राइम कमिट करने वाले क्रिमिनल्स हैं उनको डिस्करेज किया जा सके,
फिर आपका सोशल स्टेटस भी बड़ा रिगार्ड किया जाता है पनिशमेंट देने के हवाले से। फिर विपिंग की सजा, कूड़े मारने की सजा, फाइन की सजा भी इम्पोज की जाती है। फिर बाजुकात क्या होता है कि प्रिजनर के पाँव के ऊपर वुडन शू रख दिया जाता है ताकि वो भाग ना सके। फिर ये भी है कि उसकी गर्दन के इर्द गिर्द वो लकड़ी लगा दी जाती है ताकि, और उसी तरह से कहा जाता है किसी तरीके से वो चले। फिर सीरियस ऑफेंसेस के लिए क्रूसिफिक्शन की भी सजा है। ठीक है, तो ओवर टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरता गया रोमन पनिशमेंट भी सिवियर होती गई। हो रहा है आपको? आप ना काइंडली मैसेज करके बस ये कहें कि आपको समझ आ रही है। अच्छा, ट्रायल एडवोकेसी इन द रोमन सिस्टम, the lawyers can offer advice to parties during the litigation and may also deliver a speech, but they cannot receive money for their services. Lawyers should listen to the speeches by other advocates during the period of training. अब रोमन सिस्टम में क्या होता है कि लॉयर्स एडवाइस तो कर सकते हैं लेकिन उसके लिए वो चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, वो फिर ये करते हैं कि अपनी ट्रेनिंग के दौरान दूसरे एडवोकेट्स को सुनते हैं, उनकी स्पीचेस को सुनते हैं। सम जजमेंट्स इन द टाइम ऑफ रोमन लीगल सिस्टम। अच्छा, अब कुछ फैसले हैं जो कि वहां पर उस जमाने में रिकग्नाइज किए गए हैं। नंबर 1, if one admits to stealing or killing an animal or slave, he must pay the rightful owner the value of the property. If he denies the action and is found guilty, he is then required to pay double the value. अच्छा, अगर कोई स्लेव कोई एडमिट कर लेता है कि उसने किसी का जानवर स्टील किया, चोरी किया या उसे मार दिया, तो उसे उसकी वैल्यू उसको देनी पड़ेगी, मतलब कि उसको पैसे हर्जाना देना पड़ेगा। और अगर वो अपने एक्शन को डिनाई करता है, गिल्टी पाया जाता है, तो फिर वो डबल पे करेगा। नंबर 2, a thief caught in the night could be killed if the thief had been forewarned by a shout. द रात को अगर पकड़ा जाएगा थीफ, तो उसको मतलब कि अगर वार्निंग दी गई है लेकिन वो फिर भी बाज नहीं है तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। नंबर 3, वन माइट लीगली किल टू डिफेंड वन सेल्फ, मतलब अपने आप को बचाने के लिए आप किसी को मार सकते हैं। नंबर 4, एक्सेसिव ब्रुटैलिटी ऑन द पार्ट ऑफ टीचर इज कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब होता है जिम्मेदार ठहराना, मतलब कि आपका टीचर आप पे बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती करता है तो वो भी लाइबल है क्राइम के तहत। ठीक है, तो जो ओवरऑल आप ये पढ़ा है आपने, उसके आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिएगा, एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दीजिएगा। बाकी डेथ पनिशमेंट में ये है कि जैसे कि पहले जिक्र कर चुके हैं कि डेथ पेनल्टी के लिए वो उसे चट्टान से फेंक दिया जाता था या जिंदा उसे दफन कर दिया जाता था या फिर उसको जलाया जाता था ताकि उसकी मौत वाक़या हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद डिटेंशन में रखा जाता था, कैद में रखा जाता था, तो जो कि अपनी ट्रायल की जिनका ट्रायल चल रहा होता था, ये सजा की एग्जीक्यूशन के लिए जो इंतजार कर रहे होते थे। ठीक है, और जो मैजिस्ट्रेट का हुक्म नहीं मानते थे उन्हें भी इम्प्रिजन में रखा जाता था। ठीक है, फिर आप पनिशमेंट इन रोमन लीगल सिस्टम, वही कॉन्सेप्ट आप दोबारा लिखें, फिर इसको कंक्लूड कर दें। क्वेश्चन समझ आया आपको? हेलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं या एक काफी है क्वेश्चन? ठीक है, मैं ये फिर रिकॉर्डेड लेक्चर आपको भेज रही हूँ।